Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. आज काफी कम बच्चे ज्वाइन किए हैं इस बार, क्या बात है? Everyone is fine? So anyhow, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने हीट इक्वेशन को डिस्कशन किया था, फिर देख लीजिए एक बार। वी हैव एप्लीकेशन पार्ट डिस्कशन कर रहे थे फूरियर सीरीज का, तो हमने हीट इक्वेशन जो है वो डिस्कस कर ली थी और उसका सोल्यूशन में भी हमने डिस्कशन कर लिया था कि कैसे सोल्यूशन उसका निकालना है। तो हमने देखा कि वट एवर हीट इक्वेशन, सबसे पहले तो हमने हीट इक्वेशन को देखा कि हीट इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो मैं अब सिर्फ उसके रिजल्ट्स के बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हीट इक्वेशन है which is equal to be 1 by k into curl of a u by curl of a t, and this x lies between 0 to a, where a is the length of the rod and t is the greater than 0, and some conditions are being given to us which are boundary conditions as well as the initial condition. Boundary conditions are there, we have taken up as a u0 t is equal to be 0 is equal to be u of at at the end points, both are taking at the same temperature, ठीक है। फिर initial condition given थी हमारे पास कि u x, 0 is equal to be f of x. So based upon these three terms, we can talk about, we have talked, this is being given up means that whenever the time t is equal to be 0, initial, we have some temperatures being given to us, and after solving it out, we have said that we हमने आंसर निकाला था इसका कि अब सॉल्यूशन निकाला था हमने लास्ट टाइम, u n x, t is equal to be dn sine of n pi x upon the a into e power the minus of n square pi square a square into the kt, where dn is non-zero and n is equal to be positive number out there. Okay, तो उसके बाद हमने इसको जनरलाइज किया था कि this uxt is equal to be the summation, by using our superposition principle you can add up all these terms out there and we can get up the, this is a summation of unxt, which is equal to be summation of a dn sine of a n pi x upon the a into e power minus of n square pi square upon the a square into kt, where again the dn is non-zero. फिर यूजिंग अप दिस ux is equal to be 0 is equal to be f of x, आपने dn की वैल्यू निकाली दी है ना, तो by considering up ux is equal to be 0 is equal to be f of x, ठीक है। ये कंडीशन से आपने dn की वैल्यू निकाली थी, where dn is equal to be 2 over a integral 0 to a f of x into sine of n pi x upon a into dx. So by substituting the value of this dn over here, you can get the thermal distribution of the given rod out there, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। Today now we'll discuss the one numerical based upon this, and you should try up the more numericals based upon your this topic from the tutorial sheet, okay। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कशन करता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ तक तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, यहाँ तक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। बट इन द थ्योरेटिकल एग्जाम यू हैव टू बी डू अप ऑल दैट पार्ट। तो क्वेश्चन है, सपोज आउट thin rod of length, a thin rod of length say pi is first immersed in boiling water so that its temperature is 100 degree throughout,
then rod is removed from water at time t is equal to 0 and is immediately put in ice so that both the ends are kept at 0 degree Celsius. Find the temperature distribution, or you can say find the temperature uxt if heat equation is given by one dimensional heat equation, that is the curl square u by curl x square is equal to be 1 by k into curl u by कर्ल टी। तो इसको ऐसा भी किया कहा जा सकता है। तो अभी अगर मैं इस चीज की बात करूं, इस टर्म की, कि फर्स्ट इमर्स्ड इन अ बॉइलिंग वाटर, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और ये जो हमें बोल दिया गया, देन रोड इज रिमूव फ्रॉम द वाटर at time t is equal to be 0 and is being immediately put in an ice so that both the ends are kept at 0 degree, ठीक है। फिर दोनों के दोनों एंड्स को हमने रिमूव आउट कर दिए और 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लिए। तो इसका मतलब है दिस इज अवर बाउंड्री कंडीशन। सो मींस इफ यू सी आउट दिस इक्वेशन, दिस, तो यू कैन से दैट हमारे पास यहाँ पे ux0 जो है वो गिवन है 100 डिग्री, और u0 कॉमा जो t है वो 0 है, और u ऑफ तो नाउ द रोड की जो लेंथ है वो आपके पास दिया हुआ है पाई। तो मींस हियर ये जो रोड की लेंथ है ये क्या दिया हुआ है पाई। सो मींस 0 इज लेस देन x लेस देन पाई एंड t इज ग्रेटर देन 0 आउट हियर, है ना। तो u ऑफ पाई कॉमा t इज आल्सो 0। तो दीज कंडीशंस आर बीइंग गिवन अप हियर, ठीक है। ये कंडीशंस आप गिवन है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ। सो नाउ व्हाट टू डू। तो अगेन अब हमने जो भी आंसर ऊपर निकाला था, सो हियर हियर अगर आप देखें हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले मींस आर्टिकल के अंदर जो हमने ए लिया था, ए इज द लेंथ ऑफ अ रोड, है ना। ए हमारे पास लेंथ ऑफ अ रोड थी। अगर आप देखिए आर्टिकल के अंदर, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेशन को 0 इज लेस देन x लेस देन ए लिया, ठीक है। बाकी सब कंडीशंस वैसे ही हैं। तो अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है, पाई है। तो सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द गिवन, जो हमने डेरिवेशन निकाल रखी है ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो आप ये सब डेरिवेशन दोबारा करेंगे, ठीक है। सो ड्राइव सॉल्यूशन निकालने के लिए, मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप ड्राइव करेंगे पहले विद, अब यहाँ पे क्या होगा, विद a इज इक्वल टू बी पाई होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास पैरामीटर गिवन है। तो u n x t की वैल्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी जो हमने लिखी थी, u n x t, वहां पे a को पाई डाल दीजिए। तो क्या था फॉर्मूला, तो dn, तो सी आउट द फॉर्मूला अभी हमने लिखा था ऊपर, तो विच इज द dn un is equal to be dn sin of n pi x upon the a, ठीक है, into e power the minus of a n square pi square by a square into the kt। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a is equal to be pi है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू को पाई डालते हैं, ठीक है। तो वी गेट द फॉर्मेशन आउट हियर। तो यहाँ पे पाई डालने के बाद वी कैन से दैट, सीधा uxt लगा लेते हैं, which is going to be summation of this, summation of dn
into sine of a n pi x upon the pi आ जाएगा, which is sine of a nx into e power the minus of a n square pi square upon pi square से pi square cancel हो जाएगा, minus of n square k into t, and here conditions being given that the dn is non-zero. तो यहां तक any doubt किसी को पहले? नो सर। तो ये हमने क्या किया है, वहां पे a की वैल्यू को पाई डाल दी है बस, तो वी हैव फॉर्म्ड अप अ सॉल्यूशन ऑफ अ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अभी अभी जो फर्दर हमारे पास, क्योंकि dn की वैल्यू निकालनी है ना, तो dn की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है कि ux,0 इज इक्वल टू बी f of x विच इज इक्वल टू बी 100, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जो है गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन आई है इसमें t की वैल्यू को 0 डाल दीजिए, सो वी गेट द ux,0 is equal to be summation of dn into sine of n into x which is equal to be 100, ठीक है। so now 100 is equal to be ये आ जाएगा, where n is equal to be 1 to infinity है summation जो है यहाँ पे। तो here the x lies between 0 to pi, ठीक है। so here this equation, sorry, so if you see out this equation, so this equation represents the, जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, represents Fourier half range साइन सीरीज, ठीक है, ऑफ किसकी साइन सीरीज है ये, यस किस टर्म की साइन सीरीज है ये, 100 की साइन सीरीज है ये, ऑफ कांस्टेंट 100, सो दैट अब dn की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो dn इज इक्वल टू बी 2 over pi 0 to pi f of x is here is 100 into sine of n pi x upon the pi sine of a n x dx. Do the integration. So this becomes equal to be cos of a n x upon the n. Limits are 0 to pi. Substitute the values. तो क्या आ जाएगा ये, cos n pi is -1 power the n and cos 0 is 1, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ, इज इट क्लियर। तो ये dn की वैल्यू आ गई, dn की वैल्यू जो भी आई है वो गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो uxt क्या था आपके पास, समेशन ऑफ dn था, तो dn की वैल्यू है 200 ओवर द पाई into 1 minus of a -1 raised to power the n into the sine of, सर अपॉन एन नहीं आएगा सर, जी बेटा, सर 200 अपॉन पाई, सर एन मिसिंग है यहाँ पे। हाँ n आएगा, सॉरी n आएगा, n भी आएगा, सॉरी। तो 1 minus of a -1 power n into the sine of nx into e power minus of n square k into t। तो ये समेशन के अंदर है सारा का सारा, where n is equal to be 1 to infinity। So we get a solution here is, ये जो हमारे पास आए, this is the required solution of a heat equation, this is the required distribution of a heat, ठीक है। So this is the required solution under given boundary
conditions and initial condition, and the given boundary and initial condition you can see. ठीक है, so this is the required solution. तो ये हमारे पास solution जो है वो निकल के सामने आया. So this is a way we can find a solution for the given problem of a heat equation. And similarly you can proceed out. देखिए जितने भी questions रहेंगे numericals के अंदर, all the procedure is almost same. ठीक है, फर्क कहाँ रहेगा? मटेरियल के ऊपर फर्क रहेगा कि whatever the material, whatever the initial condition we are taking up, and accordingly we can get a solution of a heat equation. So this is the way that the Fourier series help to get the solution of the given heat equation out there. So now we will discuss about how we can get the solution of the wave equation. अब wave equation के ऊपर discussion कर लेते हैं एक बार. सर हाँ जी बेटा प्लीज. सर एक डाउट तो ये पूछना था कि ux of 0 का 100 मतलब इनिशियली हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर है रॉड का हाँ वो 100 डिग्री हाँ सेल्सियस हाँ, के लिए देखिए ना यहाँ पे अभी क्या किया, सबसे पहले तो आपने उस रोड को इमर्स कर दिया बॉइलिंग वाटर में, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज 100 डिग्री थ्रू आउट. उसको बाद आपने रिमूव कर दिया है. अब देखिए ना यहाँ पे क्या गिवन हो गया, एट टाइम t is equal to 0 it is being removed and immediately put in ice so that the ends are kept at 0 degree. अभी दोनों के दोनों एंड जो है वो 0 डिग्री के ऊपर रखे हुए हैं. तो यहाँ पे आपको गिवन दे दिया ना, its temperature is 100 degree throughout, so you have to be get the conditions accordingly. ठीक है. Yes, sir. Yeah. So now I'm discussing about a solution of a wave equation. अब wave equation मैं पूरा डिटेल में नहीं डिस्कशन करूंगा उसकी solution के, वो भी उसका solution भी almost same तरीके से ही ड्राइव होगा. तो I will just give up the heats. ठीक है. तो मैं अब wave equation के ऊपर आता हूँ. तो यहाँ भी हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है जो हमने डिस्कशन करनी है. ठीक है. तो solution of one dimensional wave equation satisfying the given boundary and initial conditions. ठीक है. अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. अभी यहाँ पे क्या है, अब देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है. ठीक है. अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक हिस्सा आपने पकड़ के उसे स्ट्रेच आउट करके उसे आपने जर्क पैदा की है, तो देन वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है. which will move towards this end of a where it is being tied out, and wave अब एक तरह से वेव जो है वो ट्रैवल आउट करेगी, है ना. वेव जो है ट्रैवल आउट करेगी इसमें. सिमिलरली यू हैव लाइक आप गिटार बजा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं, अगेन व्हेन यू प्रेस अप एनी ऑफ द वायर, अगेन the required wave is being produced, which produce a wonderful sound out there, है ना. So now we have to be consider out what is the position, what is the displacement of the required wave at any position x at any time t out there. तो अब यहाँ पे ये displacement जो है उसकी स्टडी है. ठीक है, कि वेव की इस पोजीशन पे या इस टाइम के ऊपर वेव क्या डिस्प्लेसमेंट है, कैसे मूवमेंट है वगैरह वगैरह. तो वी हैव टू बी स्टडी अबाउट दैट प्रॉपर्टी. अच्छा, उसमें भी कुछ और आते हैं कि व्हाट एवर द इनिशियल कंडीशंस एंड व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस वी हैव. ठीक है. सो फर्स्ट पे पहले तो हम वी हैव टू बी कंसीडर अप द व्हाट इज अ वेव इक्वेशन, कि वेव इक्वेशन है क्या. सो वी विल कंसीडर अप an elastic string of length a whose ends are fixed. सपोज आपके पास कोई एक रोड है, तो रोड कहती है इलास्टिक स्ट्रिंग है, और ये O और ये A.
दोनों के दोनों एंड्स हमने फिक्स कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज मैंने इसको किसी पोजीशन से बीच से उठाया और उठा के छोड़ दिया, तो अब अगर छोड़ा है तो डेफिनेटली सम वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अप इन दैट। जैसे आप वायलिन या गिटार बजाते हैं, अगेन वहां पर भी क्या होता है, आप हल्का सा उसे नीचे की तरफ स्ट्रेस कर, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन देते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो सेम वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अप इन दैट केस। तो पर्टिकुलर एक लेंथ जो है उसकी फिक्स है, दिस लेंथ इज बीइंग ए, ठीक है, एंड दीज आर द एंड पॉइंट्स। यहाँ पे x इज इक्वल टू बी 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी a है। सिमिलरली हियर यहाँ पे x इज इक्वल टू बी 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी a है ना। तो वी हैव टू बी गो विद दैट। सो नाउ इफ, अब यहाँ पे जैसे वहां पे मैंने uxt लिया था रिप्रेजेंटिंग अ थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब यहाँ पे हम लेते हैं uxt रिप्रेजेंट्स द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो uxt रिप्रेजेंट कर, यहाँ yxt कई बुक्स में yxt लिखा हुआ है इसको, वहां पे uxt लिखा हुआ है, यहाँ पे yxt लिखा हुआ है, सेम थिंग आउट देयर। आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम कहते हैं से uxt, नाउ uxt हियर रिप्रेजेंट्स deflection of string at time t is equal, whatever time, whatever वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशंस है, at time t and at position x, then motion of such a string, such an elastic string you can say, is governed by second order partial differential equation PDE means the partial differential equation given by curl square u by curl x square is equal to be 1 by k into curl square u by curl t square, where k is a positive constant. Okay. So this equation represents the one-dimensional heat equation. तो ये जो equation है ये one-dimensional heat equation है. So this represents the one-dimensional heat equation. Oh, sorry, wave equation. Similarly, we can talk about taking up two dimensions are being taken up. So this is the one-dimensional heat equation of elastic string. अगर मैं टू डिमेंशनल वेव इक्वेशन को देखता हूं, in that case I have to be look out the x-axis as well as the y-axis, है ना. So that equation will be curl square u by curl x square plus curl square u by curl y square is equal to be 1 by k curl square u by curl t square. And this is a wave equation of like a membrane, elastic membrane. Example is for the membranes are there. Similarly, we can talk about a three-dimensional the wave equation, which is for the surfaces, elastic surfaces. In which we have a consideration of the z axis are also there. Okay, but in our syllabus we have to be
Stick only to the one-dimensional heat equation or wave equation. So we have to be discuss only one-dimensional heat equation as well as the one-dimensional wave equation. So now we have to discuss whatever the boundary value problems are there in case of a wave phenomena. Whenever the problem of a vibrating string is there, जब हमारे पास कोई vibrating string है तो हमारे पास क्या boundary conditions हैं, क्या initial conditions है, that we have to be taken up. ठीक है? So now I'm discussing of that part. तो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि whatever the boundary conditions and the initial conditions of a vibrating string. Boundary conditions and the initial conditions of a vibrating string. ठीक है? Suppose out you consider consider an elastic string of elastic string of length, say A, whose ends are fixed. Okay, means both the ends x is equal to be 0 and x is equal to be A. So let the string is displaced from its initial position and then released to vibrate. Now consider uxt be the vertical displacement of an elastic vibrating string. Okay, which is the function of x and t. Then the initial and boundary value problem modeling the motion of such string is given by one-dimensional wave equation, which is curl square u by curl x square is equal to be 1 by k curl square u by curl t square, where x lies between 0 and a and t is greater than 0. Again, the boundary conditions are here कि आपके पास at the both the ends अगर हम दोनों ends की बात करें, they are rest. दोनों के दोनों ends rest पे हैं, क्योंकि आपने कहीं बीच से इलास्टिक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना शुरू किया है या कहीं से भी शुरू किया है, तो दोनों ends के ऊपर for every t they are at rest. ठीक है, दोनों ends को बांधा हुआ है, whatever the condition is there. So we have 0t is equal to be 0, u a comma t, this is equal to be 0 for every t. It means that both ends at rest.
This is our boundary condition. ठीक है. And what about the initial condition? अब initial condition क्या हो सकती है? एक तो आपने स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और छोड़ा, ऐसा ही हुआ ना, स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और छोड़ा, दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. अब अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो when time t is equal to be 0 there is definitely some speed, तो स्पीड भी होगी उसकी, there is some change that will the wave is being moved out. तो these are the initial conditions. तो initial conditions क्या हैं? एक तो होगी u x, 0 is equal to be f of x. ठीक है, this is called as the initial displacement. ठीक है, and then there is some speed, the curl u by curl t when t is equal to be 0, which is equal to be g of x. And here the x lies between 0 and a, whatever the condition is being given to us. So this is the initial speed. Okay, so these two conditions are initial conditions. Okay, so we have total 4 conditions are here to find the value of all the constants whatever we have. Okay, ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं अगेन. अच्छा, इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है कि हमारे पास की जो फॉर्मेशन है कि यूजिंग अप द प्रोडक्ट मेथड से ही सोल्व करेंगे. तो मैं अभी केसेस जो है फिर वैसे ही डिस्कशन होंगी सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कशन करूं, वेव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, तो कैसे स्टार्ट किया था हमने हीट इक्वेशन में, वैसे ही स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में पीडी को कन्वर्ट करेंगे ओडी. करेक्ट, we have to be convert the PDs to the ODs using up a product method, है ना. So let the solution of a given PD, let the solution of given one dimensional wave equation, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं. wave equation number 1 is of form, क्या लेंगे, product of a two variables which are x and t. ux comma t is a function of ax and a function of a t. अब वहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, कर्ल के u by curl x square is equal to be 1 by k कर्ल के u by curl t square. तो क्या निकालना है, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है. तो यहां से निकाल ली, कर्ल के u by curl x square निकाल लिया which is x double dash into t, और कर्ल के u by curl t square निकाल लिया which is x into t double dash, और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 में. तो वन इक्वेशन क्या थी, कर्ल के u by curl x square is equal to be 1 by k कर्ल के u by curl t square. तो ये हो गया x double dash into t is equal to be 1 by k into x t double dash. Separate the variables now. तो क्या हो जाएगा, x double dash upon the x is equal to be 1 by k t double dash upon t. और जैसे वहां पे रिपीट किया था, suppose that again this is equal to be some omega which is some constant, है ना. So now separately two equations are being formed up here. दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी जैसे वहां फॉर्म हुई थी. सेम वे हियर द टू इक्वेशंस आर बीइंग फॉर्मड अप. कौन कौन सी आएंगी, एक तो आएगी x डबल डैश माइनस ओमेगा इनटू x इज इक्वल टू बी 0. दूसरी क्या आएगी, t डबल डैश माइनस k इनटू ओमेगा इनटू t इज इक्वल टू बी 0. अब ये दो इक्वेशंस आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म हो गई हैं. ठीक है, अब फिर वैसे ही हमने वहां पे बाउंड्री कंडीशंस ली थी, है ना. वहां पे बाउंड्री कंडीशंस भी ये सेम ही ली थी, x इज इक्वल टू बी 0 इज इक्वल टू बी 0, x ऑफ a
इज इक्वल टू बी 0, है ना। तो वो बाउंड्री कंडीशंस अब यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों पे। हमारे पास u0t इज इक्वल टू बी 0 है और u a ऑफ t कॉमा t भी 0 है। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं मींस आपके पास क्या है, ux कॉमा t इज इक्वल टू बी x ऑफ ax इंटू t ऑफ t है ना। अगर आप x की वैल्यू को 0 डालते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 t ऑफ t। सेम रीजन वैसे ही, क्योंकि t is greater than 0 है, so why you can say that t of t is non-zero. Same reason, whatever we have already given up in the heat equation. It means that this implies that x of 0 is equal to be 0. And similarly, जब आप x को दूसरी बाउंड्री एंड पॉइंट्स पे लेंगे, बाउंड्री पॉइंट पे लेंगे, तो we can go with the 0 is equal to be u of at, which is equal to be x of a into t of t. And this again implies that x of a is equal to be 0. तो ये हमारे पास अब बाउंड्री कंडीशन निकल आई सेम लाइंस पे। क्लियर, वी गेट द बाउंड्री कंडीशंस आर बीइंग अगेन सेम। अब ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं। नाउ वी हैव टू बी सिंपलीफाई, अब वी वुड लाइक टू बी सॉल्व अप दीज टू ओडीज। अब हमने ये जो दो ओडीज हमारे पास फॉर्म हो गई हैं, इनको सॉल्व भी करना है। तो क्या किया था हमने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना था स्टेप नंबर 2 में, है ना। स्टेप नंबर 2 में हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द नॉन ट्रिवियल solution of ODs। ये जो ODs हमारे पास फॉर्म हुई है, इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है अंडर दीज बाउंड्री कंडीशंस, अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशंस व्हाटएवर वी हैव। अब उसके लिए आपने क्या केस डिस्कस किए थे, 3 केस लिए थे। सर उसमें हमने केस 1 और हाँ, एक लिया था ओमेगा इज इक्वल टू बी 0, फिर लिया था ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, और फिर ओमेगा इज लेस देन 0, है ना। और जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर ओमेगा 0 ले लें या ओमेगा ग्रेटर देन 0 ले लें, यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं निकला था, है ना। वी हैव नो सोल्यूशन इज देयर, या ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया था हमारे पास, क्योंकि हमने नॉन ट्रिवियल निकालना है, तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था वहां पे, u ऑफ x t की वैल्यू 0 आ रही थी, तो यहाँ सोल्यूशन नहीं मिला था। सेम रीजन वैसे ही आएगा, ठीक है। और ओमेगा इज लेस देन 0 के लिए आपके पास सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे भी। सो हियर अगेन वी गेट द सोल्यूशन ओनली फॉर दिस। तो रेपिटेशन सेम है, प्रोसीड कीजिएगा अपने, मैं सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर बात करता हूँ अभी। तो फिर से वैसे ही ओमेगा की वैल्यू को सपोज कर लीजिए। सो लेट, क्योंकि ओमेगा लेस देन 0 है, तो लेट ओमेगा इज इक्वल टू बी माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x डबल डैश माइनस ओमेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू बी 0। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को माइनस लैम्डा डाल दीजिए। सो वी गेट द x डबल डैश, सो दिस इंप्लाइज x डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू बी 0। फिर से वैसे ही सोल्यूशन निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू बी 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लैम्डा। तो गिवन ओडी का जो सोल्यूशन है, जो x वाला पार्ट था, उसका ओडी का सोल्यूशन क्या बन गया, C1 cos root lambda x plus C1 C2 cos, sin C2 sin root lambda। correct। तो C1 cos lambda x and C2 sin lambda x। Yes। Yes, we get the answer। अब इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगा लीजिए ताकि आपको C1 C2 की वैल्यूज का पता लग सके अकॉर्डिंगली। आपके पास कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशन की x of 0 is equal to be 0 है और x of a भी 0 है, ये हमने अपनी डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो ये वाली कंडीशंस आप लगाइए। अगर मैं x of 0 is equal to 0 लगाता हूं तो cos of 0 is 1 and sin of 0 is 0।
तो अगर मेरे पास, अगर मैं x इक्वल टू 0 लगा रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c1 into 1 plus 0. So this implies that c1 is equal to be 0. तो c1 की वैल्यू 0 यहाँ पे डाल देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास x of a x क्या आ गया, c2 sin of अंडर रूट लैम्डा इंटू एक्स. अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन डाल देते हैं. सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, x ऑफ a इज इक्वल टू बी 0 है ना, तो x की वैल्यू को a डालते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं x की वैल्यू a डालता हूं तो x ऑफ a which is also equal to be 0 is equal to be c2 sin of a अंडर रूट लैम्डा x. जैसे हमने वहां पे रीजन दिया था, सेम रीजन विल बी हियर दैट c2 कैनॉट बी 0 फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, बिकॉज c1 इज 0 है. As c1 is 0, so c2 cannot be 0 for a non-trivial solution. Same reason. तो ये यानी कि c2 0 नहीं हो सकता, फिर क्या 0 होगा, साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा इंटू a. साइन 0, साइन थीटा is equal to be 0 and sin theta is equal to be n pi. So we get the under root lambda into a is equal to be n pi upon a. सेम वैसे ही पार्ट चल रहा है. अब देखिए वहां पर भी यही केस चले थे. सेम रीजन विल बी हियर. तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकल आई आपके पास. ये मैंने ए पहले डाल दिया शायद. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, n square pi square by a square. So here the n is equal to b and so on. Clear? So we get the value of lambda. तो हमारे पास x of x की वैल्यू जो निकल आई वो निकल आई c2 साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए n pi x upon the a where c2 cannot be 0 and n is equal to be 1 2 3 and so on positives. Okay, अब सेकंड पार्ट आप उसका जो है ले लीजिए अपना टाइम वाला. सेकंड ओडी वो आपके पास क्या थी, टी डबल डैश माइनस के इंटू ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू बी 0. अब ओमेगा की वैल्यू माइनस लैम्डा है तो ये हो जाएगा टी डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू के इंटू टी इज इक्वल टू बी 0. फिर वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, यस we get the auxiliary equation as a m square plus lambda into k is equal to be 0. तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लैम्डा इंटू के. तो t का सोल्यूशन क्या निकल आया, c3 टाइम्स cos. देखिए c1 c2 मैंने पहले ले लिए थे इसलिए अनदर कांस्टेंट्स लेने पड़ेंगे डिफरेंट. अंडर रूट लैम्डा के इंटू टी प्लस c4 साइन अंडर रूट लैम्डा इंटू के इंटू टी. या एनी डाउट? सर इसमें n पाई ओवर a नहीं आएगा? हाँ वो डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू वही लास्ट में वही डालेंगे. बेसिकली हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल रखी हुई है, पहले तो लैम्डा की फॉर्म में ही डालेंगे ना. ठीक, ओके. लैम्डा की वैल्यू निकाल रखी है तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम रीराइट करते हैं तो c3 cos ऑफ n pi अपॉन द a इंटू अंडर रूट k इंटू t प्लस c4 साइन ऑफ n pi अपॉन a इंटू अंडर रूट k इंटू t. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो निकल आया. अब should get the multiplication of these two parts, है ना. अब uxt क्या है हमारे पास, a function of ax into a function of a t. ठीक है,
अब यहाँ भी इसको थोड़ा सा चलो, वी हैव अ लेस टाइम नाउ, तो खत्म होगा नहीं है, तो लेस इसे इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? 10:30 तक ही है ना ये लेक्चर? So in the next lecture we'll be go with to the next part of this, ठीक है? तो नहीं तो इसे अपने आप ट्राई करके आइएगा, बिकॉज अभी बाकी सारा पार्ट सिमिलर है. यू हैव टू बी गो विद द, इसे जनरलाइज कर लीजिए C3 C4 को भी और C2 को भी, यू कैन गेट विद द एक्सेंट फॉर्म्स आउट देयर, ठीक है? सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी एक्सप्लोरिंग. और सर इसमें भी हम dn मान लेंगे लास्ट में? हाँ, अभी देखिए, जब आप x को t से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये C2 C3 आ जाएगा और ये C2 C4 आ जाएगा. तो C2 C3 इज अ कांस्टेंट एंड C2 C4 इज अ कांस्टेंट, उसे आप बाहर निकाल लीजिए फॉर्मेशंस को, ठीक है? So in that case you can get up some results out. So next lecture we can be exploring on this part, ठीक है? दो कांस्टेंट्स आएंगे यहाँ पे, फिर वो इनिशियल कंडीशन से दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को डिस्कशन करेंगे. So we will continue up this part in the next lecture. Thank you. Any other query if you have? Any other query? हाँ बेटा प्लीज. सर ये जो टेम्परेचर फंक्शन है वो एंड पॉइंट्स पे कांस्टेंट वैल्यू देगा ना? क्या सॉरी ये टी फंक्शन है ये जो, टाइम फंक्शन है यहाँ पे. हाँ वो एंड पॉइंट्स पे कांस्टेंट वैल्यू देगा ना? किस एंड पॉइंट्स पे? यस सर. देखिए अभी टाइम के ऊपर जो हम डिपेंडेंसी है वो एंड पॉइंट्स के ऊपर तो फॉर्मेशन पे हम देख ही नहीं रहे. अभी तो हम तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ जो पोजीशन है एक्स वाला है उस पे हमारे पास वैल्यूज हैं. और जो मैं अगर इनिशियल कंडीशंस की बात करूं तो इनिशियल कंडीशंस जो है वो हमारे पास व्हेन टाइम इज इक्वल टू बी 0, ठीक है? व्हेन टाइम इज इक्वल टू बी 0 वो गिवन है. एंड व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट्स पे मैं क्या कह सकता हूं कि टाइम की वैल्यू जो है, हाँ अगर टाइम इज इक्वल टू बी 0 वी हैव अ इनिशियल पोजीशन इज बीइंग गिवन टू अस व्हिच इज f of x, ठीक है? एंड पॉइंट्स पे तो हम पोजीशंस की बात कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की. क्लियर? या थैंक यू. Thank you.